हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड व्हिच वर द सेंट्रल टेंडेंसीज। सो नाउ मूविंग ऑन, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और समझेंगे लाइक बियॉन्ड द सेंट्रल टेंडेंसीज। सो इफ वी से इन एनी डेटा और इन एनी एग्जांपल you will come across a term which is dispersion. Okay, अभी डिस्पर्शन का मतलब क्या है? आई बी टीचिंग फ्रॉम माई स्कूल नोट्स। सो डिस्पर्शन का मतलब क्या है? लाइक इट इज अ मेजर, इट कैन बी डिफाइंड, इट इज अ measure of how spread, or you can say varied, the data is from central value. ठीक है? This is not a definition. This is a definition meant for your understanding. इसका मतलब क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ, मेजर तो मालूम ही है, हाउ स्प्रेड और वेरिड योर डेटा इज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। मतलब हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसीज में क्या पढ़ा था? सेंट्रल टेंडेंसीज वेर मीन, median and mode, right? These three. So these three will be referred to as central values. कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। So इन वैल्यूज से कितना स्प्रेड है, मतलब if I explain with respect of a graph, suppose this is your mean, suppose this is your, and also this is your median. Here your mode will also come. Okay, suppose mode will also come here only, in this range only. So this region will have the central values. So मान लो आप लोग का डेटा, कहीं पे एक डेटा है यहाँ पे, कहीं पे एक डेटा है यहाँ पे। सो इस पॉइंट से लेके जो ये डिस्टेंस होगा, जो ये वेरिएशन होगा, इतना डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस होगा, this is what is termed as dispersion. Okay, correct, done. Now to understand something is not enough, right? You need to know what are the applications of it. So डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए कुछ मतलब मेथड्स भी होते हैं। सो वी विल डिस्कस, दिस इज व्हाट विल कम इन योर एग्जाम। सो उससे पहले समझना भी जरूरी था। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अभी मेजर करने के लिए ये जो कितना डिग्री ऑफ वेरिएशन है, इसको मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स है। फर्स्ट इज रेंज, आई विल एक्सप्लेन यू। सेकेंड इज योर हाँ, standard deviation. I'm sure you have heard about this. Third is your variance, and fourth is your COV. COV is coefficient of variance. Okay, पहले समझना, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। When you understand, you'll automatically it will go here. Okay, now range, पहले के लेक्चर में अगर देखा होगा then you will understand that I have given some examples. Some were group data, ungroup data, these things were there. Let me give an example now. I'll explain each and everything with respect to example, and formulas will also be there included in it. 1, 2, 8, 7, 9. ठीक है? Now if I tell you find out the range, तो रेंज क्या होगा? रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 9, लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1। रेंज इज नथिंग बट 9 minus 1 which is 8। ठीक है, और एक एग्जांपल रेंज निकालने का। अभी सपोज मैंने बोला
कोई टेबल है, सपोज लेट्स से 1 to 2, not 1 to 2, 1 to 4, suppose 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज है, मान लो 3, 8, 7, 2, समथिंग वैल्यूज आर देयर। सो रेंज क्या होगा इस केस में? लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ये इंटरवल्स पे ध्यान देना। लार्जेस्ट वैल्यू इज 16, लोएस्ट वैल्यू इज 1, so 16 minus 1 is 15. So this is all about range. Range is done. Okay. अभी next क्या है? Next is SD. SD is nothing but standard deviation. इसको we can represent it as, okay, before representation, let me tell you two concepts: sample and population. ठीक है। Sample and population, these two words will come across in statistics. Sample, if I give an example, okay, let's say there are 10 students in a class and the students' heights have been given. Okay, students' heights have been given. So I asked you to find out the average height. So there are 10 students only. So you can take all of their heights and then you can just calculate them. It's easy, right? Now, if I tell you that the life is to death, or you can say more appropriately, birth is to death ratio. This is the birth is to death ratio in 100 families, or let's say in 1,000 families in a village. You need to calculate. Okay, but you need to calculate this, the birth is to death ratio of in 1,000 families in a village. Now out of these 1,000 families, randomly data of 5 families has been provided. Now they asked you to find out for this what the data for this is given, randomly 5 families out of 1,000 families. So in this case, when you will do the calculation, you will use formula for sample only. Okay, you will use formula for sample, but then you will calculate it for population. इसका मतलब क्या है? अगर sample ये है, ठीक है, then sample is a subset of the entire population. This will be your population. ठीक है, पूरे 1,000 families का तो हम लोग डेटा नहीं निकाल पाएंगे. It will be much more troublesome. So we will calculate this 5 data for this 5 families only. So then we will consider formula for sample. मैं बाद में बताऊंगा. सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा अलग है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग है. दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कंसेप्ट ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन. जब ऐसा सीन रहेगा, क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट randomly 5 families or randomly this many have been selected out of this large population or this large number of people, this much data. Suppose we say कोई भी एक experiment में we did the experiment for 10 times and we estimated it up to 100 times. ऐसे कहा जाता है ना. So in that case you did for 10 times, right? So data is given for 5 families. So you will take the formula for sample only. You won't take the formula for population. लेकिन इस केस में, पहले के केस में, पहले वाले एग्जांपल में आई टोल्ड दैट 10 बच्चों का हाइट दिया हुआ है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज, mean or standard deviation. So you took the entire 10 kids, the entire 10 children in the class. So you took the entire population. In that case, you need to apply the formula for population. एक वर्ड में अगर if I am to end this sample and population, so अगर if you take the entire data given, entire number of data given,
your formula will be for population. If you take a small segment of that, your formula will be for sample. It's done. Okay. Now let's come to, I'll write it as SD, standard deviation. So इसके दो फॉर्मूला है, one is for sample, one is for population. ठीक है. Now let me see. Yeah. So sample I'll represent it as S, population I'll represent it as this sigma. ठीक है. इसके लिए फॉर्मूला क्या है? For this I'll give you a small tip. Always try to relate the formula and then remember. Don't remember the formula like separately. Now if I ask you to recall, what was the formula for median? दो फॉर्मूला थे, एक था when n was odd, एक था when n was even. Always relate it कि difference कहाँ पे था. Then only your entire concept will be feeded into your head very precisely. Let's come back to the topic. So sample and population. Sample का क्या था? यहाँ पे देखना, ठीक है? Okay. For sample, first give this, then give square root. Okay. Okay. Let me write it. Wait. See, it was नीचे क्या होगा? n minus 1. ठीक है. Population में क्या होगा? Let me write the population here. Population में क्या होगा? n. Done. Now difference कहाँ पे आएगा? सिग्मा होगा, सिग्मा होगा. ठीक है. यहाँ पे x माइनस, यहाँ भी x माइनस x बार. ये x बार क्या था? होल स्क्वायर. व्हाट वाज x बार? x बार वाज मीन. क्या मीन? मीन ऑफ सैंपल. ठीक है, सैंपल का मीन. यहाँ पे होगा म्यू. म्यू क्या है? म्यू भी है मीन, बट मीन ऑफ क्या? मीन ऑफ population. So if you see, the formula is exactly the same. Square root आएगा, square root आएगा. Then in numerator summation of xi लिख सकते हो. You know what is xi minus x bar. X bar is mean. यहाँ भी xi minus mean, but what mean? It will vary population mean because you are doing for population. Here x bar mean of sample, you are doing for sample. यहाँ पे डिफरेंस आएगा. यहाँ पे सैंपल में आएगा n minus 1. n is number of observations. यहाँ पे n. That's it. When you relate in this way, then it will go into your head. Otherwise you will do all jumbled up. ठीक है. ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी स्टैंडर्ड डेविएशन देखने से तो नहीं होगा. We'll understand with an example. I won't find the exact value. I will show you how to solve it. Okay. Yeah. Let's say mass is given xi and frequency is given fi. ठीक है. 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74. Okay, done. 9, 12, 3, 9, 12, 7. ठीक है. अभी मैं अगर बोलूँ इसमें से I'll ask you to calculate what is mean. How will you calculate? First you need to find out xi, right? This is xi interval. Okay, not xi. For xi, what will you do? This plus this divided by 2.
it will be 57. This will be 62. This will be 67. This will be 72. हो गया. You will find out fi xi. You will calculate it and find out, right? This will be done. This will be done. You will find out sigma of fi xi. Here you will find out sigma of fi. फिर क्या करना है? मीन के लिए सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi. ये करके हम लोग का मीन निकल जाएगा. ठीक है. अभी हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? सैंपल दिया हुआ है. सैंपल में वी हैव टू फाइंड आउट दिस. ये तो हो गया, हम लोग का निकल गया. पूरे डेटा का मीन निकल गया. अभी xi माइनस x बार. सो suppose x bar is 2. suppose x bar is 2. यहाँ पे फिर xi माइनस x बार क्या होगा? 2 है ना. 57 माइनस 2 55. 62 माइनस 2 60. 67 माइनस 2 65. ऐसे करके जाएगा. इसका फिर होल स्क्वायर xi माइनस x बार होल स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर एक आएगा. इसका होल स्क्वायर एक आएगा. इसका होल स्क्वायर एक आएगा. ऐसे करते करते जाएगा. ठीक है. हम लोग धीरे धीरे इस फॉर्मूला पे आ रहे हैं. xi माइनस x बार होल स्क्वायर. ये हो गया. नाउ समेशन दिया हुआ है. सो यू विल ऐड ऑल ऑफ दिस. सो योर दिस थिंग विल कम xi माइनस x बार होल स्क्वायर. ये आ गया यहाँ से. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? standard deviation s is equal to root over this sigma xi minus x bar whole square divided by n minus 1. तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे n minus 1. n क्या है यहाँ पे? n क्या होगा? सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा है 4 वेरिए ऑब्जर्वेशन है. 1 2 3 4. so n will be 4. सपोज यहाँ पे 6 होता है. n will be 6. so n will be 4 minus 1. so ऐसे करके you will get the answer for standard deviation. ठीक है. अभी standard deviation फॉर्मूला से समझ तो लिया. what does it actually mean when I ask you what is standard deviation? फॉर्मूला तो ठीक है. now see, I'll give a very easy example. You will understand. Let's say 10 12 14 16 18. ठीक है. these are the marks obtained by students out of 20. ठीक है. यही easy example लगता है तो I am taking this only. if I tell to find out the average, what will you do? You will add all of this divided by 5. so the answer will come to 14. ठीक है. क्योंकि ये बीच का है तो it will come to 14. so your mean will be 14. ठीक है. अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मीन ऑफ द डेटा से कितना वेरी कर रहा है ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन. मतलब 14 से 10 कितना वेरी कर रहा है? 4. 14 से 12 कितना वेरी कर रहा है? 2. 14 से ये तो मीन है, ये 0 होगा. फिर 14 से 16 कितना वेरी कर रहा है? 2. कितना वेरी कर रहा है? 4. तो मीन से मतलब ये क्या होगा? ये xi हो गया ना. तो xi माइनस x बार कितना होगा? मतलब 10 माइनस 14 विल बी माइनस 4. 12 माइनस 14 विल बी माइनस 2. दिस माइनस दिस इज 0. 16 माइनस 14 इज प्लस 2 प्लस 4. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कम्स. ये अगर मीन है, मीन से कितना वेरी कर रहा है पॉजिटिव में, कितना वेरी कर रहा है नेगेटिव में. वेरिएशन क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आवर वैल्यूज विल लाई बिटवीन -3 एंड +3. तो आवर वैल्यूज विल लाई बिटवीन कुछ भी हो सकता है. -2 हो सकता है,
2.8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल लाई बिटवीन दिस टू नंबर्स। सो यही है स्टैंडर्ड डिविजन। मतलब कितना, इधर इधर ये अगर मैं 0 मान लूं, इधर 3 वेरी कर रहा है, इधर 3 वेरी कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविजन का मतलब ही यही है कि मीन ऑफ द डेटा से कितना वेरी कर रहा है ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो हाईएस्ट कितना वेरी कर रहा है, 4, माइनस में 4, प्लस में भी 4। दिस इज व्हाट इज मेन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। डन। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया देन सोचना जरा। मैंने सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एग्जांपल एक्सप्लेन करते हुए मैंने कहा था कि सैंपल हम तब लेंगे जब एक छोटा सा ले डेटा सेट लेंगे आउट ऑफ एंटायर थिंग। लेकिन मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने सपोज ये 4 ही है, मैंने चारों के चार यूज कर लिए, तो बट हियर आई यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, राइट? दैट मीन्स आई यूटिलाइज द सैंपल फॉर्मूला। तो किसी का क्वेश्चन आ भी सकता है कि आई वुड हैव यूटिलाइज द पॉपुलेशन फॉर्मूला आल्सो। बट अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो, नथिंग डायरेक्टली दिया हो, वी कैन कंसिडर दिस सैंपल फॉर्मूला। बट अगर कहीं पे मेंशन हो कि 5 रैंडमली डेटा वाज चोजन आउट ऑफ दिस, कुछ मेंशन नहीं किया है ना, देन यू कैन यूज इट। बट अगर डायरेक्टली मेंशन कर दिया हो दिस मच वाज डेटा वाज चोजन आउट ऑफ दिस, देन चला जाएगा पॉपुलेशन और सैंपल वाले कॉन्सेप्ट में। और एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि द सैंपल मीन इज 22 और द पॉपुलेशन मीन इज 22, देन हमें ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सैंपल मीन मतलब एक्स बार, पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अभी वेरिएंस। वेरिएंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज डिनोटेड बाय ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में किसी को मालूम है फॉर्मूला क्या है या रिलेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ओके, ये करवा दिया, ये करवा दिया। हाँ। हम्म। एसडी को क्या लिखते हैं? और वेरिएंस को लिखते हैं, बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा जाएगा, VARX, मतलब वेरिएंस इन एक्स। ठीक है, वेरिएंस इज दिस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है डिफरेंस? ये बहुत इजी है। ये क्या है? ये अंदर वाला, अगर मैं इसी को स्क्वायर कर दूं तब ये आएगा ना, आएगा कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? साइन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n-1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? मतलब क्या, ये एस डी है ना, है कि नहीं? एस डी होल स्क्वायर। सो वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का
होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया। अभी लास्ट एक चीज बचा विच इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। फिर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कैसे, प्रॉफिट क्या होता था, कितना प्रॉफिट परसेंट क्या होता था, जितना प्रॉफिट हुआ बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट भी वैसे ही होता था, इंटू 100। ठीक है। तो सेम चीज इमेजिन करना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। ये दो चीजों के लिए होगा, सैंपल के लिए होगा और पॉपुलेशन के लिए होगा। सैंपल के लिए क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा फॉर सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल डिवाइडेड बाय, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल डिवाइडेड बाय एक्स बार। एक्स बार क्या था, मीन। यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी म्यू नहीं, ये होगा, हमने हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये याद रखने का सिंपल तरीका है, हमने हमेशा, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, आई एग्री। याद रखने का सिंपल तरीका यही है कि वी ऑलवेज कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मीन। तो विथ रिस्पेक्ट टू मीन करते हैं ना, तो सैंपल का मीन क्या है, एक्स बार है, मीन को डिनोमिनेटर में रखो। पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू है, म्यू को डिनोमिनेटर में रखो। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। सैंपल के लिए ये बाय एक्स बार होगा, पॉपुलेशन के लिए ये बाय म्यू होगा। एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने बोला था कि ये याद रखना, इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया तो वेरिएंस भी निकल जाएगा, क्योंकि इसी से तो वैल्यू आता है ना। Then this is done. So here comes the end of methods of dispersion: range, standard deviation, variance, coefficient of variance. Done. Goodbye.